سید المرسلین شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال مولانا المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام الحکمت ضابط المؤمن فخذ الحکمہ ولو من اہل النفاق صلوات یا میں اس طرح کہوں کہ تمام تر تعریف اس خالق کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں نظام قدرت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو میں آگے بڑھوں، پہلے تو مجھے وہ باہر والے اور پیچھے والے احباب مجھے بتا دیں میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے، آپ لوگوں کی آواز بہت زیادہ گونج رہی ہے، اگر صحیح ہے تو ایک سلوات پڑھ دیجیے تو مجھے جب یہاں بلایا گیا تو مجھے کہا گیا کہ دعا نقبہ کا اہتمام ہے اور اس کے بعد 22 سے 23 منٹ کی گفتگو ہے، اور میں نے پوچھا کہ کرنا کیا ہے، کہا ذکر اہل بیت۔ اب 22-23 منٹ میں اس نے 23 سال لگا دیے ذکر اہل بیت کو یہاں تک پہنچانے میں، اور ہم سے کہا گیا کہ 23 منٹ میں کر دیں تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، بہرحال جو میں کر سکتا ہوں کوشش کرتا ہوں۔ امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی علیہ شے ہے، میراث ہے، فخذ الحکمہ، حکمت کو لے لو ولو من اہل النفاق، چاہے تمہیں منافق کے پاس کیوں نہ پڑے، چاہے منافق سے لے لو۔ سوال یہ ہے کہ وہ منافق کے پاس پہنچی کیسے؟ جب وہ منافق کے پاس جا رہی تھی تو ہم کہاں تھے؟ ہے ہماری شے گمشدہ ہے، مولا فرماتے ہیں، تو میرے جملے نہیں ہیں، امام فرماتے ہیں کہ حکمت مومن، حکمت ہے کیسے؟ کیا کس چیز کو حکمت کہتے ہیں؟ حکمت، دانائی، دانش، علم، یہ ساری چیزیں جو ہے مختلف الفاظ میں آپ کو ملیں گی، یہ ہماری چیزیں ہیں۔ منافق کو کیسے ملی؟ کیونکہ اس نے اپنے سامنے جو دروازے بند تھے اسے کھولنے کی کوشش کی۔ ہم نے کہا ہمارے اپنے بند رہنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم انہیں چکروں میں رہ گئے کہ ہمارے تو اپنے ہی ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسے جانے کے نام کہتے۔ مومن کو زیرت ہونا چاہیے، امام فرماتے ہیں کہ مومن بے وقوف نہیں ہوتا، اور ہم شاید اپنے آپ کو بہت زیادہ آج کل کے زمانے میں چالاک سمجھتے ہیں، لیکن علی کی نگاہ میں چالاکی کچھ اور ہے، زیرکی کچھ اور ہے، دانائی کچھ اور ہے۔ ہم جسے چالاکی کہتے ہیں در حقیقت وہ چالاکی نہیں، منافقت ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ ہم جو ایک دوسرے کو دغا دے رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ چالاکی نہیں ہے، کسی کو نقصان دے رہے ہیں۔ اب جو ہے دنیا چاند پہ جا رہی ہے، دنیا سوچ رہی ہے کہ مریض پہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، زندگی کیسے گزاریں گے۔ ہمارے یہاں ان مسائل سے باہر نکلتے نہیں کہ مولانا نے آج یہ غلطی کر دی، اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا تو آپ انہیں سب سے آگے کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہم سے افضل کوئی نہیں، یا تو پھر آپ خود سے بھی کم تر سمجھتے ہیں۔ اس سے آگے نکلیے۔ ایک دفعہ حکمت کی بات آ رہی ہے تو علامہ ہلی کے زمانے میں بادشاہ وقت نے اپنی زوجہ کو، اب دیکھیے کہ یہ حکمت کس طرح کام کرتی ہے، ہم اپنا پیغام میسج کیسے پہنچا سکتے ہیں دنیا تک۔ تو اس سے میں آ کے زوجہ کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد بڑا پریشان ہوا کہ میری عزیز زوجہ، پیاری زوجہ، اب کیا کیا جائے؟ بڑا پریشان ہوا، کہا کہ جناب بلائیے علماء کو۔ ایک کو بلایا، اس نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا، ہو گئی تو ہو گئی، آپ نے 3 دفعہ کہا، ہم نے 3 دفعہ کہا، ہو گئی۔ دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، چاروں نے کہا جناب آپ نے 3 دفعہ کہہ دیا تو ہو گئی۔ ابھی بڑے پریشان ہو گئے کہ اب یہ بھی گئی ہاتھ سے، اب کیا ہوگا؟ بہت سوالات کی، اس کے بعد کہا کہ یہاں پر جو شیعہ عالم رہتے ہیں آپ ان سے پوچھیے، شاید ان کے پاس کوئی پتہ چلا علامہ ہلی تک بات پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو وقت نہیں کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں، میں اپنے معاملات میں الجھا ہوں۔ یہ ہے سبحان اللہ، بادشاہ بلانا کو کہتے ہیں کہ میں اپنے کاموں میں الجھا ہوں۔ بڑی مشکل کے بعد پر یہ راضی ہو گئے۔ راضی ہوئے دربار کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہم یہاں کسی چھوٹے سے
गया, चप्पल उतार के बगल में डाली। ये सारे परेशान बादशाह के दरबार में, ये गुस्ताखी। अब बादशाह को अपना मसला चाहिए, जवाब चाहिए। बादशाह ने भी कुछ नहीं कहा। जैसे ही अंदर आने लगे तो उलमा देखकर कहने लगे कि भाई खुदा की दरबार तो अलग, तवज्जो रखिएगा तुम लोग, खुदा का दरबार तो अलग, बादशाह के दरबार में तो ख्याल करो। कहा मैंने क्या बेहतरामी की? हाँ, चप्पल बगल में लेकर कहा कि भाई रसूल की बारगाह से चप्पलें चोरी हो गई। क्या बात है। ये तो बादशाह कहने लगे कि किसने रसूल की बारगाह में गुस्ताखी की, किसने चुराई चप्पल? पता नहीं, आपके इमाम होंगे। मैंने कहा हमारे इमाम? वो कैसे हो सकते हैं? बहुत तवज्जो रखिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। वो कैसे हो सकते हैं? वो तो रसूल अल्लाह के 150 साल बाद आए थे। अच्छा, आपके वाले नहीं थे? फिर आपके वालों की कहा वो तो 200 साल बाद आए थे। आपके भी नहीं थे, फिर आपके होंगे? कहा वो 250 साल। आप करते करते बात 300 साल तक चली थी। कहा बादशाह सलामत, आप इनसे मसले पूछ रहे हैं जिनके इमाम 150, 200, 300 साल। मेरे इमाम ने आंखें रसूल के हाथ में खोली है। उससे पूछे, मैं आपको बताता हूँ। एक ही जुमले में कर दी उन्होंने तबलीग कि भाई मेरा इमाम वो है जिसने आंखें रसूल की आगोश में खोली। आपसे पूछिए, मैं बताता हूँ। कहा कि जज्बात में तो तलाक थोड़ी होती है, जज्बात में तो लड़ाइयाँ होती हैं। तलाक तो फैसला है, फैसले तो आराम से होते हैं। ये है इल्म, ये है हिकमत जो मोमिन के पास होनी चाहिए। और फिर उन्हीं में से एक इमाम ने जो है कहते हैं कि लौला सनतान लहलक नौमान, इमाम अबू आज़म हनफिया कहते हैं कि अगर ये 2 साल मेरे इमाम सादिक के पास ना एक सलवात पढ़ती थी। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू आगे जाऊं, इजाजत हो तो मुझे जिंदगी गुजरने के बाद ईरान में वापस पाकिस्तान आया। तो पाकिस्तान आने के बाद मुझे आज तक बावाज़ बुलंद का मतलब समझ में नहीं आया। लोग कहते हैं बावाज़ बुलंद सलवात, तो आज तक से बावाज़ बुलंद समझ नहीं आया। हिकमत मोमिन की गुमशुदत है, इसे तलाश करना चाहिए। अच्छा, अब इनकी बात हो रही है कि लौला सनतान लहलक नौमान के इमाम ने आजम, मुसलमानों के इमाम, अगर इमाम सादिक के पास 2 साल ना गुजारते तो हलाक हो जाते। ये मेरे इमाम की फजीलत नहीं है, मेरे इमाम की फजीलत नहीं है। शायद आप क्या किसी की फजीलत हो कि इमाम के दरवाजे पे गए, ऐसा नहीं गिरामी कहते। इसी तरह बस एक दफा आए और इमाम से मिलना चाहते हैं। इमाम उस वक्त मशगूल है अपने, मैं आजकल की जबान में आपको समझाता हूँ, इमाम अपनी मीटिंग्स में मशगूल हैं और दूसरे ममालिक के सुफरा आए हुए हैं और ये बाहर खड़े हुए। इतने में देखा कि एक वफ्द जो है हिंद से आया हुआ है। मौजूदा हिंद दोबारा मुख्तसर हो गया, उस जमाने में जहाँ तक होता था। इमाम के पास जैसे ही जाने लगे, ये भी अंदर चले गए। अंदर जाके बैठे और कुछ देर के बाद अचानक बीच में गुफ्तगू शुरू कर दी। छठे इमाम से कहते हैं कि आप तलवार क्यों नहीं उठाते? 10,000 का मजमा है जो असहाब को गालियाँ भी देता है, असहाब के साथ बदज़बानी भी करता है और असहाब के साथ बदसलूकी भी करता है। उस जमाने के जो असहाब थे इमाम के भी और रसूल अल्लाह के साथ। इमाम फरमाते मेरा कोई साथ नहीं देगा। और मैं आया हूँ और एक लश्कर है, 4,000 तो मेरे अपने तालिब इल्म, हम साथ देंगे। इमाम ने फरमाया उनमें से तुम भी हो। कहा कैसे? मौला हुक्म करें, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। कहा जब हमने कहा अंदर नहीं आना, इतनी बात तो समझ में नहीं आई, इतनी बात तो मानी नहीं। अब हम लश्कर लेके जाएं और आप हमें जो है अपना लश्कर प्रोवाइड करेंगे। अब कयास का मसला शुरू हुआ, बहस हो रही है। देखिए कि इल्म किस तरह आगे बढ़ता है। कयास किसको कहते हैं? कयास मिसाल के तौर पर किसी का किसी से मुकाबला, मवाजना, मुकायसा कर देना। अब ये कयास की बहस हुई तो इमाम ने अब उससे सवाल किया जो इमाम का शागिर्द है, जिसके अपने 4,000 शागिर्द। इमाम ने पूछा क्या तुमने लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम का तर्जुमा किया? क्या तर्जुमा किया? कहा कि कयामत के दिन जो नेमतें दी गई हैं उनके बारे में सवाल होगा। अब इससे पहले कि आगे बताना, इमाम ने फरमाया कि तुमने ये भी कहा कि जो खाना खाते उसका सवाल होगा। हाँ मौला ने फिर पूछा तुमने ये भी कहा कि जो
जो पानी पीते उसका सवाल होगा, तुमने ये भी कहा, तुमने कहने का मौला की सब बातें मैंने कही। इमाम फरमाते हैं कि सुनो, और आप लोग भी गौर से सुनिए। इमाम फरमाते हैं कि सुनो, तुम्हारे घर कोई मेहमान आए और तुम सुफरा बिछाओ, दस्तरखान बिछाओ, खाना लगाओ, पानी दो, मशरूब रखो, उसके बाद पूछोगे क्या क्या खाया था। क्या बात है। ये बड़ा परेशान होगा, ये खाना वाना अल्लाह की नेमतें हैं, ये सवाल नहीं होगा। जिसने दे दिया वो पूछेगा थोड़ी कितना खाया। मौला फिर किस चीज का सवाल होगा? कहा कि जिस नेमत के बारे में कयामत का सवाल होगा वो हम लोगों की विलायत है। इमाम के पास और आकर गिरिया करने लगा, मौला का चाहने वाला। कहा कि मौला लोग मुझे ताने देते हैं, कहते हैं कि तुम गरीब हो। मौला मैं क्या करूं? इमाम का जवाब सुनिए। इमाम फरमाते हैं तुम्हारे हाथ पर हथेली पे पत्थर रख दिया जाए और जमाना कहे कि तुम हीरा लेकर घूम रहे हो तो क्या करोगे? क्या कहोगे? कहा मौला जमाना कुछ भी कहे, पत्थर है तो पत्थर है। अब मौला ने सवाल बदला, कहा कि तुम्हारी हथेली पर, फरमाया कि तुम्हारी हथेली पे हीरा रख दिया जाए और जमाना क्या है पत्थर है तो तुम क्या कहोगे? कहा मौला यकीन है ना कि हीरा लेके घूम रहा हूँ। क्या बात कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इमाम फरमाते हैं कि देखो दुनिया तुम्हें गरीब कहती है, क्या तुम्हारे दिल में हमारी मोहब्बत है कि नहीं? मौला ऐसी मोहब्बत है कि आपके नाम पे जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। मौला ने फरमाया इससे बढ़कर भी कोई दौलत चाहिए? इतनी दौलत लेकर घूम रहे और परेशानों के लोग गरीब कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये हिकमत जो है इन्हीं के दरवाजे से मिलेगी। ये दरवाजा जो है हमें थोड़ा सा सही से झुकना पड़ेगा। एक सलवात पढ़ दीजिए बाबा। दरवाजे पर आएंगे पता चलेगा कि गुफ्तगू कैसे होती है, लॉजिक क्या है, मंतिक क्या है। इन्हीं दरवाजों से ये सब कुछ मिलेगा। और किसी जमाने में एक कदरिया आया बादशाह के पास और कहने लगा कि मेरे कुछ सवालात हैं, अगर कोई जवाब दे सकता है। उसने बड़े मुश्किल सवाल किए। कदरिया क्या है मैं आपको एक नजरिया बता दूं। कदरिया एक मतलब है जिसमें पुराने जमाने के जो कदरिया लोग होते थे, कदरिया मतलब के लोग, वो कहते थे कि खुदा को कुछ भी नहीं पता, जो हो जाता है उसको पता चल जाता है। ये नजरिया था। उसके बाद प्लस में वो कहते थे कि खुदा के इख्तियार में कुछ नहीं है, जो है हमारे इख्तियार में उसने बस बना दिया, बन गया, उसके बाद सारा इख्तियार हमारा। तो जो पुराने कदरिया थे वो तो खत्म हो गए कि खुदा को कुछ इल्म नहीं है, उनको इल्म हो गया कि खुदा के इल्म में सब कुछ। बाकी जो ये रह गए कि भाई खुदा का जो है किसी चीज पर तो इख्तियार नहीं है, जो भी करते हैं हम अपनी मर्जी से करते हैं। अब ये सबसे सवाल करता रहा और यहाँ तक कि जो है किसी ने जवाब नहीं दिया। इस्लाम खतरे में, यानी इस्लाम से मुराद वो जो बनाई हुई सुन्नतें थी वो खतरे में। ये भी मुसलमान है कदरिया, अल्लाह को मानते हैं लेकिन बस इख्तिलाफात। अब बादशाह बड़ा परेशान, नाम लेना भी मुनासिब नहीं है। पता चला कि भाई कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। कहा कि इमाम मोहम्मद बाकिर उनको बुलाया जाए और मदीने से शाम आ जाए ताकि इस मसले का हल निकालें और जवाब दें, वरना ये बड़ा मसला हो जाएगा। पैगाम भेजा। इमाम ने फरमाया कि अभी हमारी उम्र बढ़ गई है, हम अपनी बेटी को भेज देते हैं, वो जवाब दे देंगे। अब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम शाम पहुंचे। लोगों ने देखा कि उम्र तो छोटी है, वो बड़े सवाल लेकर आया है। यही तो दरवाजा है जहाँ पे उम्रें नहीं देखी जाती। यहाँ पे 9 लाख पे हमला करने के लिए बच्चा भी मुस्कुरा देता है, यहाँ उम्रें नहीं देखी जाती। बस लोगों ने देखा कि जो है छोटी उम्र है, क्या किया जाए। बादशाह ने सोचा कि अगर इस नौजवान ने जवाब दे दिया तो लोग अहले बैत के पीछे चले जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। बादशाह ने टाल मटोल से काम लिया। बहरहाल मुख्तसर करूं, लोगों ने कहा कि जब आ गए हैं शाम तो फिर उनको बुला लीजिए। अब शुरू हो गया जनाब, कह लीजिए कि मनाजरा, कह लीजिए गुफ्तगू शुरू हुई। और ये बड़े सवाल सोच कर आया था। जब देखा कि सामने नौजवान है, इसके सारे सवाल वैसे ये ठंडा हो गया कि मैं इनसे क्या बात करूँ। इमाम ने कहा मुसलमान हो? मैंने कहा हाँ। अल्लाह को मानते हो? हाँ। नमाज पढ़ते हो? हाँ। क्या पढ़ते हो? ये कैसे सवाल है, मैं इतने
समझते हैं इसका तर्जुमा क्या है। सुभान अल्लाह। मौला वो भी अरबी, वो भी अरबी, आप भी अरबी, कुरान भी अरबी, आप अरबी का तर्जुमा पूछ रहे हैं, क्या बात इसका है। तर्जुमा क्या है? कहने लगा इसका तर्जुमा यह है कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इमाम ने कहा तेरी इबादत को तो छोड़ दो, आगे का बताओ क्या है? हम तुझी से मदद मांगते हैं। मौला ने फरमाया जब इख्तियार उसके पास है ही नहीं तो मदद किस लिए मांग रहे हो? इख्तियार तो तुम्हारे पास है, मदद उससे मांग रहे हो। मदद उस चीज की मांगी जाती है जो अपने इख्तियार में ना हो। क्या बात है। तो तुम नहीं कर सकते हो। बस इतना सुनना था, वो ठंडा हो गया। कहने लगा कि किसको बुला दिया? कहा इसी को बुलाया, इसी काम के लिए बुलाया। सलामत पढ़ दीजिए बाबा। मसला क्या हुआ? उनके चाहने वाले आपस में उलझ गए, हम आपस में उलझ गए। हम जब एक ही मकतब से तो आपस में क्यों लड़े? ये जो झगड़े अभी शुरू हो गए, अभी शुरू हुए हैं, हमें तो पता भी नहीं कि किसने बीच में ये शरारत शुरू कर दी। मोमिन लड़ता नहीं है, कम से कम आपस में नहीं लड़ता। मैंने एक रिवायत उस दिन मस्जिद में बताई थी कि मोमिन की मिसाल तस्बीह के दानों की तरह है। जब गाने आपस में लड़ेंगे तो तस्बीह बनेगी कैसे? कैसे होगा? अब हमने क्या कर दिया कि इमाम को इमाम से ज्यादा, देखिए सबसे पहली बात है कि इमाम का मकाम समझना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपने इमाम का मकाम बढ़ा दिया, इमाम का मर्तबा बढ़ा दिया। वो क्या बढ़ाया? मुझे तो पता भी नहीं कि इमाम का मकाम क्या है, मेरी तो रसाई भी नहीं है। मैं क्या बढ़ाऊंगा? मैं कौन होता हूँ कि इमाम का मकाम बढ़ा दूं? आपने कहा कि जी अली को बढ़ा दिया, अली को कौन बढ़ा सकता है? पहले बढ़ाने की तारीफ तो करें। क्या बात है। बढ़ाना किसको कहते हैं? खुदा के लिए मौला अली को समझिए। उसके बाद बढ़ाने और घटाने की बातें बात खुद मौला का फरमान है। दो लोगों ने मेरी कमर तोड़ दी, उनमें से एक वो है जिन्होंने मेरे मकाम से मुझे गिरा दिया, एक वो है जिन्होंने मकाम से उठा दिया। पहले मकाम को समझिए। क्या बात है। मकाम मौला अली क्या है? बढ़ाने की बात देखिए, अली का मकाम बढ़ा दिया तो खुदा बन जाएगा। इससे बीच में कोई रास्ता है ही नहीं, इससे बीच में कोई रास्ता नहीं। और जिसने अली को अल्लाह बना दिया वो तो फिर गया, फिर वो अली वाला भी नहीं है, अल्लाह वाला भी नहीं है। अब क्या हो गया? हम आपस में बच गए। इमाम फरमाते हैं कि तुम्हारी गुमशुदा चीज है, उसे हासिल करो। कहां से हासिल करें? आपस में फुर्सत मिले तो उसे हासिल करें। देखिए इमाम इमाम है, जिसे अल्लाह ने रहनुमा हादी बनाकर भेजा है, वो रहनुमा और हादी है। गो कि वो हम सबसे अफजल है, गो कि वो नूर है, लेकिन वो अल्लाह नहीं है। इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, भाई मैं माफी चाहता हूँ, दोस्तों थोड़ा सा आगे चली गई, मुझे दोनों कर लेने दीजिए और बाकी माफी चाहता हूँ। इमाम के जमाने में एक शख्स ने जो है दावा किया कि खुदा उदा कुछ नहीं, कोई खुदा नहीं है, ये सब कुछ जो है वो हो रहा है, खुद से हो रहा है। और उसने इत्तेफाक से एक जुमला कह दिया कि ये सब कुछ तो मैं भी कर सकता हूँ। क्या कि फंस गया? फंसना क्या था? अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह के काम देखिए। मिसाल के तौर पे फिरौन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, ये बीच में एक मिसाल है, वाकई में मैं आपको अर्ज कर दूं। अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ। उसका क्या मतलब है? गोया वो दूसरे खुदाओं को तो मानता होगा, बड़ा मैं हूँ, चले दूसरे तो हैं जिनको तो मानते हो। उसने क्या किया कि मैं तुम्हारे खुदा को मार दूंगा। उसने तीर उठाया और आसमान की तरफ फेंक दिया। इसका मतलब वो ये समझता था कि कोई है जो ऊपर है, कोई है जो ऊपर है। अब उसके दिमाग में ऊपर शायद आसमान हो। उसने तीर आसमान की तरफ फेंका और तीर काफी देर के बाद अल्लाह के हुक्म से फोन आलू होकर वापस आ गया। उसने कहा देखा मैंने मार दिया तुम्हारे खुदा को। अल्लाह ऐसों का ऐसा ही मजाक बना। उसने जहां समझा अल्लाह ने वैसा जवाब दिया। अब इसने भी एक दफा कह दिया कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। अल्लाह ने भी फिर वैसा कर दिया। एक दफा इसने कटोरा उठाया, थोड़ी सी मिट्टी डाली, कीचड़ वीचड़ बना के एक जगह पर रख दिया। कहने लगा कि काम तो मैं भी कर सकता। कुछ दिन के बाद देखा वैसे हमारे कचरे में से कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। इसने जब कटोरा उठाया तो उसमें से कीड़े निकलना शुरू हो गए और कहने लगा देखो मैंने भी मखलूक बनाई, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। अब किसी के पास कोई जवाब नहीं कि भाई इसने वाकई बना दिया, इसने मिट्टी और कीचड़ और पानी वगैरह मिला के चीज बंद कर दी। कुछ दिनों के बाद वहां से कीड़े निकले। अब कौन जवाब दे कि तुमने नहीं बनाई है? इमाम तक बात पहुंची। इमाम ने किसी को भेजा नहीं, कहा आप खुद बात करेंगे। अब इमाम, जाहिर सी बात है, जब इमाम आए हाई प्रोफाइल शख्सियत जब आपके सामने आ रही तो 10 लोग साथ होंगे, लोगों का बजमा साथ है, क्योंकि लोग वैसे ही परेशान थे कि ये तो खुदाई का दावा करने लगा। इमाम ने फरमाया कितने हैं? जिसने कीड़े बनाए थे, इमाम ने पूछा कितने?
सर को जाने लगा। अभी इमाम ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया, फौरन पूछा बताओ नर कितने, मादाएं कितनी, कितने ऐसे हैं जिन्होंने अभी अंडे देने हैं, कितने ऐसे जो कल मर जाएंगे। ये तो मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ो इन सारी बातों को। अगर तुमने ही बनाए हैं तो तुम्हें इनके चेहरे तो पता होंगे। अभी सोच रहा था, मौलाना ने फरमाया छोड़ो इस बात को, आधे इधर जा रहे हैं आधे इधर जा रहे हैं, कोई मगरिब की तरफ कोई मशरिक की तरफ। अगर तुमने ही बनाए तो मगरिब वालों को मशरिक की तरफ भेज दो, मशरिक वालों को मगरिब की तरफ भेज दो। अभी देख रहा था कि वो कह रहा है, इमाम ने फरमाया हम बताते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा जुमला ज़हन में रखिएगा कि हम आपस में उलझ पड़े। अल्लाह अल्लाह है, इमाम ज़हन में रखिएगा। इमाम ने फरमाया हम बताते हैं, इमाम ने तादाद बताई, इमाम ने फरमाया इनमें से मादाएं कितनी, इमाम ने फरमाया इनमें से नर कितने, इमाम ने ये भी बताया इनमें से अंडे देने वाली कितनी मादाएं, इमाम ने ये भी बताया कितने मरने वाले, इमाम ने ये भी बताया कि जो मशरिक की तरफ जा रहे हैं उनकी तादाद कितनी, जो मगरिब की तरफ जा रहे हैं उनकी तादाद कितनी। अभी ये खत्म नहीं हुआ था, इमाम ने मगरिब वालों को इशारा किया कि मगरिब की तरफ चलो, मशरिक वालों को इशारा किया मगरिब की तरफ, मगरिब वाले मशरिक की तरफ। इमाम के एक इशारे से कीड़ों ने इधर उधर चलना शुरू कर दिया। उसके बाद इमाम ने कहा देखो मैं बनाई तुमने है ये मखलूकात, ये चीजें बनाई तुमने, लेकिन बता मैं न रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया तादाद कितनी, मैंने बताया नर कितने, मैंने बताया मादाएं कितनी, मैंने बताया अंडे कितने। इमाम ने जब ये सारी चीजें गिनवाने के बाद बताया कि इन सब के बावजूद भी अल्लाह मैं नहीं हूँ, अल्लाह वो है जिसे जाफर सादिक सजदा सलामत रहिए। बस इतनी सी गुफ्तगू, अगर इमाम की बात समझ में आ गई, और इमाम तो खुद ही फरमाते हैं शियतुना कुनू लना ज़ैनब वला तकुनू लना शैनन। बस यहाँ पे गुफ्तगू खत्म हो गई। ये हमारे शियों, ये हमारे चाहने वालों, हमारे लिए ज़ीनत का बाइस बनो, शर्मिंदगी का बाइस ना बनो। अब एक सीधा साधा शिया खड़ा होता है, कहता है मैं कौन होता हूँ भाई इमाम के लिए ज़ीनत का बाइस बनो। इमाम तो इमाम है, इमाम तो नूर है। आज तक उसे इसका मतलब ज़ीनत का मतलब ही समझ में नहीं आया। मैं कौन होता हूँ इमाम के लिए ज़ीनत बनूं। देखिए बात ये है, मेरा बेटा घर से निकलता है, मैं जब पाकिस्तान से बाहर था अभी कुछ दिन पहले, मुझे फोन पे बताता था बाबा मैं बाहर निकलता हूँ, लोग पूछते हैं कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं। इसका मतलब ये मेरी जितनी तवक्कुआत थी आपको मुझसे, वो सब आप मेरे बेटे से पूछ रहे हैं। अब वो जो भी करेगा आप कहेंगे मौलाना का बेटा क्या कर रहा है। हालांकि वो भी एक आम सा इंसान है, आम सा बच्चा है, लेकिन अगर उसने किसी म्यूजिक पे थोड़ा सा हाथ उठाना शुरू कर दिया सब कहेंगे मौलाना का बेटा है। वो बच्चा कौन होता है जो मेरी इज्जत बढ़ाए। क्या बात है, क्या बात है। जब एक बच्चे से इतनी तवक्कुआत की जा सकती है तो शिया भी तो इमाम की इज्जत बढ़ाएगा। शिया जब उठे तो समझ में आए कि जाफरी उठा है, बैठे तो समझ में आए कि जाफरी बैठा है, आए तो समझ में आए जाफरी आए, जाए तो समझ में आए कि जाफरी जा रहा है। उसके बैठने से लोग कहेंगे देखो ये है जाफर सादिक के चाहने वाले। बस इतनी सी बात है। और उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस ना बनो। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमने अपने आप को शिया कह दिया, टाइटल लग गया कि इमाम के चाहने वाले हैं, तो हम जो भी करेंगे इज्जत है तो इमाम की, और अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कहेंगे कि देखो अली के चाहने वाले क्या कहते हैं। करूंगा मैं, सुनेंगे मेरे मौला। करूंगा मैं, दोबारा जुमला दोहरा रहा हूं, सुनेंगे मेरे मौला। फिर मौला कहेंगे, फिर मैं कभी अपने आप से बैठ कर अपने बिस्तर में रात को जब जाता हूँ खुद से पूछूं कि मैं कौन होता हूँ, मुझे मेरे सवाल के जवाब मिल जाएगा। मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी निस्बत उनकी तरफ दे दी जो सब कुछ है, जो सब कुछ है मेरी निस्बत उनके साथ है। तो मुझे कम से कम उस निस्बत का तो ख्याल करना चाहिए या नहीं। हम अपने इख्तिलाफात से बाहर नहीं आ रहे, आधे इधर चले गए, आधे उधर चले गए, आधे मौलवी पार्टी हो गए, आधे मलंग, बहुत मासूद के साथ आपस में बैठे इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूँ, आधे मलंग पार्टी हो गए, आधे ये हो गए, वो से बाहर आइए, दुनिया बहुत बड़ी है, इमाम कुछ और चाहते हैं। हम आज तक इसे हमारे एक तो मलंग की तारीफ ही सही नहीं है हमारे, बस मैंने बात छोड़ दी यहाँ पे, खत्म करो। मलंग की तारीफ ही सही नहीं है हमारे यहाँ मलंग उसे कहा जाता है जो पीता जाता है और सोता जाता है। ऐसा है कि नहीं है? सोचता ही नहीं है, उसे मलंग कहते हैं। और फिर क्या करते हैं हम लोग ऐसे सीधे साधे, या तो हमारा हमने मौला अली का दामन पकड़ा, या तो उन्हीं को देखकर कहते हैं जो आधे होश में आधे बेहोश है, उनसे कहते हैं भाई हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हम इतने नादान हैं। मलंग किसे कहते हैं? अजीजा ने गिरामी कहते हैं मलंग को समझिए, मलंग आलिम होता है, और आलिम जब मलंग बने तो कलंदर बन जाता है। हकायक पे बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बात सुनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आलिम जब मलंग बने तो कलंदर बनता है। हमने
کی بھی توہین کر دی. اس کے بعد ہم نے کیا کیا, عزاداری کو ڈیوائڈ کر دیا. بھائی یہ ماتمی ہے, یہ مولائی ہے, یہ وہ ہے. بہرحال دعا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو اپنی زمان میں قرار دے. الہی آمین. پروردگار ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. الہی آمین. پروردگار اس